गुड मॉर्निंग एवरीवन। योग वशिष्ठ के 8वें दिन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। अपने मेंटर यतीन जोशी जी अपने साथ जुड़ चुके हैं। सो लेट्स बिगिन। You want to shoot some hoops? No, you don't have to be like that. Come on and play. Look, he likes you. Don't you have time for a little one-on-one? How long has it been since you played? Come on, you got the ball. Take a shot. No, milady, not from there. It's out of bounds. Gotta be on the court to be in play. Welcome to Duke Reginald's court of unending possibilities. Court rules. Gotta sink the last one. It never touched you. Right. And it's not solid. This ball is mostly empty. We were all taught in school that the world is made of stuff, of matter, of mass, of atoms. Atoms make up molecules, molecules make up materials, and everything is made of that. But atoms actually are mostly empty. For example, if this ball were the nucleus of an atom, a proton in a hydrogen atom, for example, then the electron circling this, which would describe the outer limits of that atom, would be out by that mountain over there, roughly 20 miles away. And everything in between is empty. In fact, the universe is mostly empty. However, when we go down in scale, in the emptiness, we eventually come to a level, the fundamental level of space-time geometry, the fine basement level of the universe, where there's information, there's a pattern. It's called the Planck scale, and it's the fabric of the universe. And at that level, there's information that's been there since the Big Bang. So most of the universe, even of matter, is actually empty. Most people think that the vacuum is empty. But for internal consistency of quantum mechanics and relativity theory, there is required to be the equivalent of 10 to the 94 grams of mass energy, each gram being E equals mc squared kind of energy. Now that's a huge number, but what does it mean practically? Practically, if I can assume that the universe is flat, and more astronomical data is showing it's pretty darn flat. If I can assume that, then if I take the volume or take the vacuum within a single hydrogen atom, that's about 10 to the minus 23 cubic centimeters. If I take that amount of vacuum and I take the latent energy in that, there is 1 trillion times more energy there than in all of the mass of all of the stars and all of the planets out to 20 billion light years. That's big. That's big. And if consciousness allows you to control even a small fraction of that, creating a Big Bang is no problem. Organizations like NASA, British Aerospace, are all trying to tap into this incredible, unimaginably large energy sea. And they feel if they can tap this, we can travel to different galaxies. So they understand that in empty space, there is this unbelievable
energy. The major basic idea that quantum physics implies, which makes us understand this or even think about this new paradigm, the thing which is that there's this underground, there's got to be a realm of existence which cannot be ever touched on or seen, which bubbles into the existence, giving rise to our understanding of the world. The tighter physics have tried to grasp onto physical reality, to understand what it's really made of. What are the core building blocks of life? At the basis of it all, life, the universe, slips through your fingers. And you come up with something that's increasingly abstract to come to the realm of pure abstraction. And that's what the unified field is. It's pure abstract potential, pure abstract being, pure abstract self-aware consciousness, which rises in waves of vibration to give rise to the particles, the people, everything we see in the vast universe. What makes up things are not more things, but what makes up things are ideas, concepts, information. And like I said, it never touches. Another strange fact is that objects never really touch each other. When I dribble this ball, the atoms of the ball and the atoms of the ground never actually meet. So nobody touches nothing. Come on, put your stuff down. Nobody's gonna take it. Like I said, this is my court. It's no problem. How long has it been? I'll be 8. The first inkling in physics that we got that time ain't what it seemed to be came with relativity. That was the first inkling. That time was not absolute, it was not the absolute ruler of the universe, that God Almighty did not say 1 second, 1 second, 1 second, 1 second, 1 meter, 1 meter, 1 meter, you're in a gravitational field. Your head is actually moving at a slightly faster rate than your feet. The second law of thermodynamics says that things unwind and move forward, so that gives an arrow of time. But at the quantum world, in the micro world, the second law of thermodynamics doesn't seem to hold, and things can go backwards or be timeless. The fundamental equations of physics have a property which is referred to as time reversal symmetry. And what time reversal symmetry means is that a set of laws which are time reversal symmetric are laws that have the following feature. For any process that's in accord with those laws, the same process going backwards is exactly as much in accord with those laws, okay? That ought to mean that that milk jumps out of coffee as often as it dissolves into it, that people get younger looking as often as they get older looking, that we have the same kind of access vis-a-vis knowledge to the future as we do to the past, that by acting now we ought to be able to influence the past just as much as we can influence the future. All of that is wrong. All of that comes into violent conflict with the way we psychologically experience the world. One of the most unpalatable ideas still, in spite of the fact that quantum physics has been around a long time, is the possibility or the notion that the future can have a causative effect on the present. We believe that the past can have a causative effect on the present. I hold the ball, I drop it, it falls. Cause, effect when it hits the ground. But could the ground be the cause of my dropping the ball in the first place? It's only in conscious experience that it seems that we move forward in time. In quantum theory, you can also go backwards in time, and there's some suggestion that processes in the brain related to consciousness project backwards in time. For example, in the late 1970s, a neurophysiologist at University of California, San Francisco, named Ben Libet did some very famous experiments. What Libet did was study patients who were having neurosurgery on their brains, with their brains exposed, while they were awake. They were given a local anesthetic to numb the area of the skull and scalp to access their brains. And they were awake, and Ben would talk to these people. So, for example, what he did was he would stimulate their little finger and look at the part of the sensory cortex on the opposite side that was related to that,
record from it electrically, and ask the patient when he or she felt the stimulus on the little finger. And he would also stimulate at that particular area of cortex. Now, what you would think would be that if you stimulate the little finger, it takes a finite period of time to get to the opposite side of the cortex, so the patient would report it a fraction of a second later after the stimulus. And when you stimulate it directly, the patient would report it immediately. He found just the opposite. When he stimulated the little finger, the patient felt it immediately, and when he stimulated directly in the cortex, there was a delay. After sorting through all the data and repeating this over and over, Libby came to the conclusion that somehow the brain was projecting information backwards in time, so that it did take a finite amount of time to get to the sensory cortex, but the brain projected it backwards in time so that the conscious perception was that the stimulus was felt when the pinch actually occurred. There have been some studies which have shown that when people are beginning to move a hand or beginning to say something, that there's actually activity in the brain in certain nerve cells of the brain, even before they become consciously aware of what they're trying to do. I know it seems to me that I often do things and then decide a fraction of a second later what to do, but I've already done them. I agree. You can always go back in time. What's the matter? Remember, it's empty. How do you know this shit? I read Dr. Quantum comics. Everybody thinks it's just kid stuff, but I know it's real. That's how I do my magic on the court. So, what they taught us in school isn't really the way it is, and that our senses are playing tricks on us. You just gotta wonder, what is this reality that we find ourselves in? Quantum physics says it's all just waves of information. Do I believe that? I hope so. Yikes! That's how I do my magic on the court. Yeah, I always choose the Wonder Boy first. Well, Dr. Quantum says everybody's got it. Everybody's doing it. Doing it constantly. Each and every time you look. And here we are, the granddaddy of all quantum weirdness, the infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought,
Maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So, they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits, and it goes through neither. And it goes through just one, and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. And it was here that physicists stepped forever into the strange never-world of quantum events. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. We are always the observer. But sometimes we identify with the event so much so that we even lose the aspect of the observer. That's why the materialist gets totally lost and thinks that we could do without the observer. The physics data tells us that, that an object itself is really a simplification for what we call out there. One is particularly when we're looking at atomic and subatomic particles or atomic and subatomic matter in any form. What we find is how we go to look at it, what we choose to examine it with, actually changes the properties of what we observe to be out there. Is this the observer, and which is so intricate to understanding the wacky, weird world of quantum particles and how they react? Is this, then, the observer? And even though we cannot have a quantum field without the observation of scientists who have gone there, who have uncovered it, layer after layer after layer, they're all observers. But not one of them agree conclusively on all points in the field, because they are perceiving the field mathematically from different angles of perception. We don't know in quantum mechanics how to hook ourselves as observers up with the world. We don't know how to treat ourselves as observers as just another part of the physical system that we're describing. The only way we know how to do quantum mechanics as it's traditionally formulated is to keep the observer outside of the system you're describing. The minute you put him in, you get all these paradoxes. And we're forced to say things in quantum mechanics like, look, the book is doing what it's doing because of quantum mechanics, and I see that because I'm there and I see it, and you better not try to analyze that second part of the sentence in terms of applying quantum mechanics to it, because it's going to break down. That's why there are these two separate laws of the evolutions of physical systems. One that applies when you're not looking at them, the other that applies when you are. But that's crazy. There's no way that we're ever going to mathematize or put into mathematical formula this very act in which a conscious observer comes up with the answer. People say, oh, the measuring instruments, the recorder records it, and there it is, it's on the tape, it's recorded. You forgot one part of the equation. Somebody has to look at the tape.
And until somebody looks at the tape, it ain't recorded at all. When you are not looking, there are waves of possibility. When you are looking, then there are particles of experience. A particle, which we think of as a solid thing, really exists in a so-called superposition, a spread out wave of possible locations. And it's in all of those at once. The instant you check on it, it snaps into just one of those possible positions. It's easy to generate situations where the equations of motion will predict that, say, the wave function, the psi of a certain basketball, is uniformly distributed all over the basketball court. We don't have any idea what a state like that would look like. According to the law of quantum mechanics, that's supposed to be a state in which it fails to make any sense even to ask the question, where is the basketball? That is, according to the law of quantum mechanics, asking the question, where is a basketball whose psi is uniformly distributed over a whole basketball court, is the logical equivalent of asking about, say, the marital status of the number 5. Okay? It's not that you don't know the answer, you don't happen to know whether the number 5 is married or a bachelor. It's that the question somehow is radically inappropriate in the first place. The number 5 doesn't have a marital status, there's nothing there to ask about, and similarly, a basketball whose wave function was uniformly distributed over the entire basketball court would not have a position that could even coherently be asked about. Now, the crux of the measurement problem is precisely that. Although the Schrodinger equation predicts under certain circumstances which we basically know how to reproduce in the laboratory, that basketballs should go into states like that. States where there fails to be any intelligible fact, any sensible question even about where they are. And yet, when we go look at the basketball court in situations like that, we invariably see either a basketball over here, or a basketball over there, or a basketball over there. The fact that we see the basketball in some specific location, as opposed to seeing it in some science fiction state that we can't even imagine what it looks like, where there fails to be a question about what its location is, the fact that we always see it in some definite location is an explicit violation of these equations of motion, and it's exactly there that the measurement problem comes up. When you observe, things happen. When you don't, they don't. Superheroes use superposition, with the world being potential strips of reality, until we choose. Heroes choose what they want, being in many places at once, experiencing many possibilities all at once, and then collapsing on the one. The question is, how far down the rabbit hole do you want to go? Your own mind is creating multiple possibilities in your So I can see that there is a question in the chat box here from our viewers. Ki what's going on? हे काय चालू है actually? So रेखा जी, हम लोग क्या कर रहे हैं actually? चल तो रही है योग वशिष्ठ की श्रृंखला, और योग वशिष्ठ में कुछ ऐसी बातें कही गई है कि जो बुद्धि के तर्क के लेवल पे समझ में नहीं आती। तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये जो चीजें यहाँ पे जो बातें चल रही है ना, जैसे यतीन जी बोलते कि इट्स ऑल देयर इन योर माइंड, एंड यतीन जी ने फर्स्ट टाइम ये भी बताया था कि देयर इज नो वन ब्रह्मांड, जबकि हमने आज तक सुना है देयर इज ओनली वन यूनिवर्स। बोलते ही है इसके लिए कि वो एक विश्व है, एक यूनिवर्स है। एंड देन जब यतीन जी बताते कि यहाँ पे मल्टीपल ब्रह्मांड्स है, हर किसी ने अपना खुद का ब्रह्मांड अपने माइंड में क्रिएट करके रखा है, तो ये चीजें का आकलन नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो योग वशिष्ठ जी ने या अपने कई सारे ऋषि मुनि जो थे, एंशिएंट ऋषि मुनि, पतंजलि महर्षि थे, नारद जी थे, वाल्मीकि जी थे,
और अपने योग वशिष्ठ जी थे, इन्होंने ये सब उस दौरान भी इसका आकलन करते हुए कि ये माइंड वर्क कैसे करता है, ये चीजें फंक्शन कैसे करती है, और अपने यहाँ पे कभी भी विज्ञान को और अध्यात्म को अलग अलग करके नहीं समझा। यार देर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस बट दे गो एक्चुअली हैंड इन हैंड। तो जो चीजें कई सालों पहले बताई गई थी वही चीजें आज के लेटेस्ट जो साइंटिस्ट है वो लोग इसको भी डिस्कवर कर रहे हैं, एंड इट इज द फील्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। तो कहते हैं कि ये जो सारी जो चीजें हैं, जो विश्व है, जो अपने को एक सॉलिड रॉक की तरह दिखाई देता है, सॉलिड, ये इनफैक्ट इसके अंदर अगर जाके हम लोग देखते हैं तो एटम और एटम के लेवल पे उसके अंदर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स घूमते रहते, तो उसके अंदर जाके देखो तो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के भी अंदर अगर जाके देखो तो इट्स ऑल hollow and empty, एंड इसके बावजूद भी वहां पे जो आकाश जो खाली दिखता है बोलते हैं वो खाली नहीं है, there is something called as energy inside it, और उसी न्यूक्लियस एनर्जी को ब्रेक करके आज हम लोग एटॉमिक पावर जो जनरेट करते हैं ना, एटॉमिक पावर प्लांट जो होते हैं अपने होते हैं, उसी न्यूक्लियस को ब्रेक करके हम लोग करते हैं। इसी को अपने इसमें शिव कहा गया है कि ना, जो शिव होता है वो सुप्त स्थिति में, वहां पे वो डार्क एनर्जी भी उसको कहा गया है। उस सुप्त स्थिति में एनर्जी ये सर्वव्याप्त है, ये जो शिव तत्व है ये सर्वव्याप्त है, ये जो डिवाइन एनर्जी, चेतना, कॉन्शियसनेस, अलग अलग नाम से जो पुकारते हैं, ये सर्वव्याप्त है। और ये आज के साइंटिस्ट इसको स्ट्रिंग थियरी के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं कि एवरीथिंग इज जस्ट अ फील्ड ऑफ एनर्जी, नथिंग एल्स। तो इसी चीज को साइंटिस्ट इसको बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरीज जो अभी ये तो थे ऑलरेडी, इट्स नॉट कि ये साइंटिस्ट लोगों ने क्रिएट किए, इट्स नॉट इन्वेंशन, दे आर नाउ डिस्कवरिंग दिस फैक्ट, इसको भी ये लोग जान रहे हैं, इसको थोड़ी थोड़ी चीजों को समझ रहे हैं। उसकी वजह से दे आर प्रपोजिंग सम ऑफ द थियरीज लाइक कि मल्टी यूनिवर्स, मल्टीपल डायमेंशंस, देन दे आर प्रपोजिंग अ थियरी ऑफ अनएंडिंग पॉसिबिलिटीज। वही आज हुआ, कुछ कीवर्ड जो है जो आज हमने सुना, we heard about unending possibilities, जो हमें यकीन भी बता रहे थे कि आपका ब्रह्मांड आप खुद क्रिएट कर सकते हो, it's all there in your mind and it's all possible, it's all in your mind। जो बच्चा होता है जो बॉल्स को बोलता है, वो बच्चा उस अमेंडा उसका नाम है, उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो बॉल जो तुम डालने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि वो जाके वहां पे टच हो जाता है और नीचे गिरता है, वो कभी उसको टच होता ही नहीं है। बोलता है बॉल भी एग्जिस्ट नहीं करता है, और वो जिसको जो बास्केट है उसको भी वो भी एग्जिस्ट नहीं करती, द नोबडी टचेस नॉट, इस वाक्य को यूज करता है। सो इससे एक बात समझ में आती है, देयर इज आल्सो अ बुक ना, इफ यू बिलीव यू कैन, एंड इफ यू योरसेल्फ बिलीव यू कांट, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, यू आर नॉट गोइंग टू डू इट। एंड इसी के ऊपर देयर इज अ मूवी कॉल्ड मैट्रिक्स, जो मूवी है, यदि आपको चांस मिले तो जरूर इस मूवी को देखना। उसमें क्या होता है कि वो द सिचुएशन इज लाइक दिस कि जो एंटायर वर्ल्ड जो है, इट इज बीन टेकन ओवर बाय द मशीन्स, जो होते हैं मशीन्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, ह्यूमंस को ऐसे लिटा देते हैं कैप्सूल्स की तरह, और उसको सिर्फ एनर्जी की तरह यूज करते हैं। और वो ह्यूमंस क्या सोचते हैं, दे आर इन द वर्ल्ड and then they are doing all these things just like the world, but in fact they are just in a shell of a capsule। तो उस शेल ऑफ अ कैप्सूल में जो ओरेकल रहती है, जो इंफॉर्मेशन को जानती है, kind of जो मेंटर रहती है उनकी, वो जानती है दिस इज नॉट द रियलिटी, और वो क्या करता है, वो ओरेकल उस कैप्सूल को तोड़ के मुक्त हो जाता है, एंड देन ही कैन सी द रियलिटी, इट्स ऑल मशीन्स एंड देयर आर सो मेनी पीपल लाइंग ऐसे स्ट्रक्चर में, एंड दे आर जस्ट बीइंग यूटिलाइज्ड लाइक अ बैटरीज टू जनरेट एनर्जी, दैट्स ऑल, उनका कुछ काम नहीं है। और उनको वहां पे दे क्रिएटेड एन वर्चुअल एनवायरनमेंट, अनरियल एनवायरनमेंट कॉल्ड मैट्रिक्स, और वो सब मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, एंड देन इन दैट मैट्रिक्स देयर आर, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मुक्त होने के कगार पे है, who have this question in their mind कि what is real, what is unreal, what is reality, जो क्या है, मैं कौन हूँ, ये प्रश्न उनके मन में उठ चुका था। तो उसमें से ऐसा ही एक इंसान होता है कॉल्ड नियो, तो नियो जानता है कि समथिंग डिफरेंट, समथिंग फिशी अबाउट दिस रियल वर्ल्ड, एंड देन ओरेकल फिर जाके उसको उसमें से निकाल के मुक्त करके लाते कैप्सूल में से, एंड देन दे डिस्कस व्हाट दिस ऑल दिस थिंग्स अबाउट।
तो ये जो नेवर एंडिंग पॉसिबिलिटीज है, एंड देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वर आल्सो, हमने आज देखा, ये एक दृष्टा, जो गुरुदेव भी इसके बारे में बोलते हैं कि आप दृष्टा बन जाओ, आप जो देख रहे हो दृश्य, वो उसको गुरुदेव माया बोलते हैं। जो जो दृश्य दिख रहा है ये सारा, उसको गुरुदेव माया बोलते हैं। और माया माने क्या, गुरुदेव समझाते हैं हमें कि माया माने जो विच इज मेजरेबल है वो माया बन जाती है, इट्स मिथ्या। इसलिए इस वर्ल्ड को भी मिथ्या बोला गया है, इसको माया बोला गया है। एंड फिर वो जो माया है जो अपने माइंड में है, देन देयर इज आर वेव्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, बोलते हैं कि इट इज इजी टू जनरेट द सिचुएशन। एंड दैट इज हाउ, आपने आज के वीडियो में देखा होगा कि वो बच्चा है, वो देखता है तो वो अलग अलग प्रकार के, एक ही बॉल नहीं, अलग अलग बॉल्स वहां पे उछलते हुए देखते हैं। वंस यू गो इनटू दैट डायमेंशन ऑफ द कोड। अभी इन सभी चीजों को योग वशिष्ठ के कॉन्टेक्स्ट में, जो साइंटिफिक बहुत सारी चीजें वहां पे बताई गई है, इसको योग वशिष्ठ के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए अपने योग वशिष्ठ के एक्सपर्ट्स, अपने मेंटर यतीन जी अपने साथ है, एंड आई विल रिक्वेस्ट यतीन जी टू टेक ओवर एंड put the viewpoint from the Yoga Vashishta perspective on all these things, whatever we have heard. So that is the background behind what was going on. Over to you, Yati. जय गुरुदेव। बड़ा आश्चर्य है ये सब देखते हैं ना, कई जगह वो रिलेवेंस भी है, पर एक बात पता चल जाती है कि ये लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं, साइंटिस्ट अभी भी डिस्कवर कर रहे हैं। आपने बहुत सही कहा सोमेश्वर कि ढूंढ ही रहे, डिस्कवर कर रहे हैं, कुछ नया नहीं बना रहे। हर जगह देखिए ना, सबसे जो कुछ भी है वो सब क्रिएशन में ऑलरेडी है, और उसके ऊपर जाके फिर धीरे धीरे और रिसर्च करके क्या है वो ढूंढने की कोशिश करें। मैंने जैसे पहले दूसरे दिन ही कहा था कि हम आसमान की तरफ देखते हैं तो एक सूरज का गोला लटक रहा होता है, एक चांद का गोला लटक रहा होता है। तो ऐसा क्यों है? तो ये ढूंढ के निकाले कि हाँ उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, घूमते रहते हैं ना, ये सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, ये बताते हैं। और क्यों हो रही है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी साइंटिफिकली आता है कि ऐसा ऐसे हो रहा है, और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऐसा ही क्यों है इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। मतलब जैसे हमेशा एक छोटा सा धागा पकड़ा, उसको एक पत्थर बांधा और गोल गोल घुमाया, तो क्योंकि उसमें फोर्स है इसलिए गोल गोल घूमते रहेगा, है ना। वो गोल ही क्यों घूमेगा? अगर किसी ने पूछा कि ये धागे का और घूमने का नेचर, ये स्क्वायर क्यों नहीं होता, इलिप्टिकल क्यों नहीं होता, ट्रायंगुलर क्यों नहीं होता, राइट, इसकी डेफिनेशन वो जो है वो ऐसा है करके बताया जाता है, उसके आगे और कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो चलो आज हम आगे चलते हैं। योग वशिष्ठ की एक दो कहानी आज पहले थोड़ा कवर कर लेते ताकि आपको बैकग्राउंड एक आ जाएगा, है ना। गुड। तो हम कहाँ थे उस दिन? श्री राम जी ने अपना वैराग्य सबके सामने रखा। उन्होंने जो सारे बातें रखी, तो उसमें विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि देखिए श्री राम जी, आपकी बातें देख के तो ये पता है कि आपको सब कुछ मालूम है ना, हमें तो ध्यान में आ गया कि यू नो एवरीथिंग। और ऐसा लगता है कि थोड़े जैसे दर्पण पे, आईने पे धूल सी जमी है, तो उसको एक बार मिटा दिया तो सब कुछ हो जाएगा। और ये काफ़ी ऑब्वियस है, जिसको प्रॉब्लम समझ में आता है, हम जो भी आईटी में है या जहाँ पे भी है ना, उनको ये चीज़ मालूम है कि अगर प्रॉब्लम क्या है पता चला तो सॉल्यूशन ढूंढना आसान है। जब प्रॉब्लम ही नहीं पता तो सॉल्यूशन नहीं मिलता, है ना। तो श्री राम जी को प्रॉब्लम पता था, इसका मतलब उनको एक 90% सॉल्यूशन भी उसी वक्त पता था कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उनका जो कंफ्यूजन वहाँ पे आया था वो ये था कि अभी अगर कुछ करना ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं कुछ करके, तो फिर जीवन क्यों जिया जाए, कोई कुछ करे तो, उनका प्रश्न था। और उनको यही चाहिए था कि अगर मुझे जीवन जीना है तो कैसे जिया जाए। बाकी फाउंडेशन तो पक्का है, ये सारी चीज़ों से अनअटैच रहना चाहिए, इनके पीछे नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये सारे दुखी देने वाले हैं, तो इनके पीछे ना लगे। पर ना लगे तो फिर जीवन कैसे जिए, और जिए कि नहीं जिए, इसके बारे में उनका बेसिक डाउट था। उसके ऊपर फिर आगे सारा योग वशिष्ठ शुरू हुआ। तो विश्वामित्र ऋषि ने उनको एक कहानी सुनाई थी कि ऋषि थे, उनके पुत्र थे शुकदेव। तो शुकदेव ये काफी ज्ञानी समझे जाते हैं। अगर आप देखेंगे भागवत या ऐसे कोई जो ग्रंथ हैं, तो हर जगह उनका रेफरेंस आया है शुकदेव जी का।
है ना। और हम भी जैसे गुरु परंपरा में लेते हैं ना, तो व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम, तो व्यास ऋषि के बाद उनके पुत्र उनके शुक्रदेव, उनका बहुत महत्व है। तो शुक्रदेव ने अपने पिताजी से जाके पूछा, उन्होंने काफी पढ़ाई की थी, सारा ज्ञान लिया था, तो उन्होंने अपने पिता के पास गए, उनके मन में एक शंका आई थी, तो पिता के पास जाके पूछा कि ये जो सारी दुनिया में देख रहा हूँ, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है, आपने सब दिया, सब बताया, ये सब झूठ है, ये है, वो है, फिर भी वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है, मन में समाधान नहीं हो रहा है कि ये सचमुच क्या है, तो मैं हूँ कि नहीं, ये दुनिया है कि नहीं, ये जो है वो क्या है, कैसे हुआ है। तो उनके पिता ने, व्यास ऋषि ने, वो भी सर्वज्ञानी थे, उन्होंने उनको सारे वही उत्तर दे दिए। तो शुक्रदेव ने कहा कि देखिए, आपने तो सारे उत्तर दे दिए, लेकिन ये तो वो मुझे पता है ऑलरेडी, कुछ ऐसा बताइए कि जो अलग है। तो वहां पे व्यास ऋषि ने कहा कि देखिए, आपको जो बताना था वो तो मैं बता चुका, अभी इससे आगे अगर कुछ जाके समझना है तो आप जाइए जनक राजा के पास, और जनक राजा आपको सब बताएगा। तो फिर वो वहां से गए जनक राजा के पास, और वहां पे जाने के बाद उनके महल के बाहर खड़े हो गए। तो द्वारपाल ने पूछा कि क्या काम है, तो बताया ऐसे ऐसे महाराज को मैसेज दीजिए कि मैं शुक्रदेव हूँ, मैं आया हूँ उनसे मिलने के लिए। देखिए, इतने बड़े हम ना इन कहानियों में से कुछ कुछ मैसेजेस ऐसे हैं कि जो योग वशिष्ठ में नहीं दिए हैं, ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। मैं कहाँ बताऊंगा, मेरा इंटरप्रिटेशन जो है वो भी बताते जाऊंगा, लेकिन वो कहानी सुनते सुनते थोड़ा भी मन करे, विचार करे, और आपको भी अगर कुछ अच्छा लगता है इससे शेयर करने लायक, तो यहाँ पे जरूर शेयर करिए। हाँ, मैं अपनी तरफ से एक बात पक्की बता देता हूँ कि हम लोग सर्वज्ञानी नहीं हैं, ठीक है, हम स्टूडेंट हैं, और इसने बड़े ग्रंथ की थोड़ी बहुत पढ़ाई जो भी की, उसमें से जो भी समझा, वो एक क्या एक बच्चा जैसे शेयर करता है ज्ञानी के साथ, उस भावना से मैं शेयर करूंगा कि मुझे ये समझा है, आपको भी समझेगा, आप भी शेयर करिए, हम दोनों एक जगह ही हैं, ठीक है। जिस तरह से मेरे कुछ ओपिनियन होते हैं कहानी के बारे में, वैसे आप भी अपने ओपिनियन बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो उतना मुझे भी ज्ञान मिलेगा, ताकि यही ज्ञान जब बाकी कहीं सेशन दूंगा तो वहां पे भी शेयर कर सकता हूँ। अभी शुक्रदेव द्वारपाल के पास जाके कहते कि मैं आया हूँ और मुझे मिलना है महाराज से। अब देखिए, यूजुअली कहीं भी ऐसे संत जाते हैं ना, किसी भी बड़े राजा के यहाँ कुछ, तो उनका एक अपना अप्रोच होता है कि पहले से मैसेज भेज दिया होता है, कोई तो जाके बोल देता है ये आ रहे हैं, दरवाजे खुले रहेंगे, आने के लिए राजा सब स्वागत के लिए वगैरह तैयार रहता है, ये सारी बातें होती है। शुक्रदेव ये इतने ज्ञानी होते हुए भी, पूरा दुनिया में उनका नाम होते हुए भी, जब वे जनक राजा के पास जा रहे थे तो वो अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। और हम जब किसी के पास ज्ञान लेने के लिए जाते हैं तो सामने वाले को हम गुरु का स्थान देते हैं, उससे कुछ ले रहे हैं, तो पूरी विनम्रता के साथ, पूरा ईगो छोड़ के उनके सामने जाना चाहिए। और वही भावना शुक्रदेव ने भी मन में रखी थी। वो गए वहां पे, तो द्वारपाल ने जाके मैसेज दे दिया जनक राजा के पास कि शुक्रदेव जी आए हैं और दरवाजे पे खड़े हैं। तो वहां पे योग वशिष्ठ की कहानी में, कई किताबों में ये जो कहा गया है कि उनको बताया गया कि ठीक है, उनको खड़े रहने दो। तो द्वारपाल ने आके कहा कि हाँ, आपको खड़े रहने के लिए कहा है, वेट करने के लिए कहा, और 7 दिनों तक वो वहीं पे वेट करते रहे, और जनक राजा ने उनकी परीक्षा ली। अब देखिए, वो द्वारपाल ने कहा उनको बीच में कि आप बैठ जाइए, तो कहते नहीं, मुझे खड़े रहने के लिए कहा तो मैं खड़े रहूंगा। 7 दिनों तक शुक्रदेव वहां पे दरवाजे पे खड़े रहे। हाँ, ये होता है डिवोशन, कि मन में मान लिया ना मैं किसी से ज्ञान रहा हूँ, तो आज्ञा मिली है वही वैसे के वैसे उसका पालन होगा। उसके बाद ये कहते हैं कि उनको 7 दिनों के बाद एक ये सारी किताबों में नहीं आए, पर मैंने कहीं से सुना है कि उनको एक ऐसा एक पतेला होता है या कोई घट होता है, वो दिया गया, और उसमें पूरा भर के तेल था, और उनको कहा गया कि आप ये पूरा पतेला, बर्तन भर के तेल दिया है, एकदम टू द ब्रिम, है ना, पूरा काठों तक भरा था, वो लेके आप पूरे शहर का, मिथिला नगरी के एक चक्कर लगा के आइए, और ये ध्यान रहे कि ये एक भी बूंद कहीं पे गिरनी नहीं चाहिए। तो वो गए घूमने के पूरा, और घूम के वापस आए, और वापस आने के बाद उनका वो बर्तन वैसे के वैसे था, एक भी बूंद कहीं पे गिरी नहीं थी।
अब इसकी वजह क्या थी? इस तरह की परीक्षा करने का कारण क्या था? तो ये कहते हैं कि जब मिथिला नगरी जो राजधानी थी जनक की, वहाँ पे क्या-क्या नहीं होता था। मिथिला नगरी में सुंदरता थी, मिथिला नगरी में महोत्सव थे, मिथिला नगरी में आजू-बाजू की सारे महल ये वो क्या-क्या हर तरह की सुंदरता से भरे थे। तो एक तरह से देखा जाए तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे, आकर्षण बहुत थे, है ना? और ये देखा गया कि क्या सचमुच वो जो शुकदेव हैं, वो अपनी नज़र उस बर्तन पे रखते हैं या इधर-उधर के अट्रैक्शंस पे, कहीं तो बैंड बजने की आवाज़ है, कहीं तो कोई गाने की आवाज़ है, तो उसकी तरफ देखता है। तो वो अपने काम में कितना डिवोटेड है, अपना उनका जो वैराग्य है, सचमुच वैराग्य है या नहीं, तो वो देखने के लिए उनकी परीक्षा हुई। तो जाके आए और उसमें पता चला कि कुछ नहीं, उनका कोई इधर-उधर ध्यान नहीं गया, पूरा ध्यान अपने काम में थे। वहाँ से आए, तो उनको फिर कहा कि ठीक है, आप अंदर आके बैठिए। अंदर आके बैठने के लिए कहा गया और वहाँ पे भी और कुछ दिनों तक उनको वहीं पे बिठाया गया। तो उनके सामने सारे मिष्टान्न आते थे, सुंदर-सुंदर स्त्रियाँ आके उनको खाना खिलाती थी। उन्होंने कहा कि चलो हम आपको नहलाते हैं, आप स्नान कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। उन्होंने सारी चीज़ों को नकार दिया। कुछ भी आ जाए वो कहते थे कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बार-बार आके पूछते थे, तो कहते कि ठीक है, मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी करिए, इतनी सेवा करिए मेरी कि मेरे सामने मत आइए। ठीक है? तो ऐसा सारा समय उन्होंने बिता दिया। शुक्रदेव और आपको रामदास स्वामी का एक श्लोक है हनुमान जी के बारे में। तो उसने लिखा है हनुमान जी के बारे में, शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जय छे। ये हनुमान जी का वर्णन है। तो शुक जैसा वैराग्य होना चाहिए। ठीक है? तो उनका जैसा वैराग्य था कि किसी चीज़ में कोई अट्रैक्शन ही नहीं रहा। तो वो वहाँ पे काफ़ी समय तक बैठे रहे और फिर उसके बाद जनक महाराज उनके सामने आए। आते ही उन्होंने शुकदेव के पैर छुए पहले। तो शुक्रदेव कहे कि अरे ऐसे कैसे कर रहे हैं? मैं तो आपके पास आया हूँ ज्ञान लेने के लिए और आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आप भी उसी लेवल पे जिस लेवल पे आप मुझे समझते हैं। आपका वैराग्य काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने आपको प्रणाम किया। तो फिर उन्हें महाराज अंदर लेके गए, फिर वही प्रश्न उनके मन से आए और जनक महाराज ने उनको वही उत्तर दिया। तो शुक्रदेव ने कहा, ये तो मुझे पता है, मेरे पिताजी ने भी यही उत्तर दिए थे। फिर अलग क्या है? मेरा अभी भी समाधान नहीं हुआ, आपके पास क्यों भेजा गया? तो जनक ने उनको फिर एंड में यही कहा कि देखिए, ये आपके मन में जो भावना है ना, और यहाँ पे हम लोग जो ऑब्जर्वर की बात कर रहे थे आज कहीं पे, कि ये जो भावना है कि मुझे कुछ पता नहीं है, इस भावना को छोड़ दीजिए। आपको सब कुछ पता है, इस बात पे विश्वास करिए और आप वहीं पे अपना फ़ोकस रखिए। ये छोड़ दीजिए कि मुझे ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। सब कुछ आपको पता है ऑलरेडी, ये ज्ञान है आपके पास। आपको अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो आप उसके वही उत्तर देंगे जो हमने दिए हैं। तो इसीलिए इस भावना को छोड़ के अभी आप अपने आप में रहिए। तो वहाँ से यूँ कहते हैं कि सुखदेव जी का समाधान हुआ कि हाँ, ये खाली अनुभव की बात है कहीं पे, ज्ञान तो सब कुछ है लेकिन अनुभव की बात है। तो वो अनुभव लेने के लिए ये सारी चीज़ों का समझने के लिए फिर वहाँ से गए, तपश्चर्या करने लगे और तब करते-करते कई साल बीत गए और उसके बाद फिर जैसे एक बिंदु पानी का समुद्र में समा जाता है, वैसे ही वो पूरे चैतन्य में समा गए। तो इसके बाद फिर विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि अभी श्री राम जी, मैं आपके जो कुलगुरु हैं वशिष्ठ ऋषि, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको बताऊंगा कि वो आपको इसका आगे का ज्ञान दें। तो वशिष्ठ ऋषि ने फिर उनसे प्रश्न किया श्री राम जी से कि चलो मैं आगे आपको बताता हूँ। और उनकी जो रिक्वेस्ट थी विश्वामित्र की, उसको बाकी के साधुओं ने भी, संतों ने भी फिर अनुमोदन दिया कि हाँ, हमें वशिष्ठ ऋषि से सुनना है, क्योंकि सबको पता है ब्रह्मर्षि थे वे। वशिष्ठ ऋषि की कहानी क्या थी? तो ब्रह्मा ने उनको निर्माण किया था, उनके कोई पिता वगैरह ऐसे हैं नहीं, है ना? विश्वामित्र ऋषि बाद में ब्रह्मर्षि बने थे। तो वहाँ पे सबने उनको अनुमोदन दिया और वशिष्ठ ऋषि ने सबसे पहले प्रश्न किया श्री राम जी को कि मैं बताऊं उससे पहले कोई प्रश्न है क्या? तो श्री राम जी बड़े, आप अगर योग वशिष्ठ पढ़ेंगे ना, तो जो प्रश्न हमारे मन में आते हैं और अगर आते भी नहीं तो वो पढ़ने के बाद हमको आश्चर्य लगता है कि मेरे मन में ये प्रश्न क्यों नहीं आया।
एक भी चीज छोड़ी नहीं। आप कुछ बोलो तो तुरंत पकड़ लेते थे। विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि को उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न किए हैं कि कहीं कोई स्कोप ही न रखा कि डाउट के लिए। इतना इसीलिए योग वशिष्ठ ना 32,000 श्लोकों का बन चुका है। एक भी मन में प्रश्न आता है हमारे तो वो उधर के उधर आना ही चाहिए, हर चीज का आना चाहिए। कल जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा था कि सबसे पहला क्रिएशन में इम्प्रेशन कहाँ से आया है ना, तो ये प्रश्न उन्होंने भी पूछा था कि हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि मेरे पिछले जन्मों का इम्प्रेशन है, पिछले जन्मों का इम्प्रेशन है, तो कोई जो पहला जन्म था उसमें तो कोई इम्प्रेशन नहीं थे, फिर जन्म हुआ ही कैसे? इस तरह की बातें सारी वहाँ पे पूछी गई हैं। तो श्री राम जी ने पूछा कि आपने कहा शुकदेव को, जो व्यास ऋषि के पुत्र हैं और यहाँ पे व्यास ऋषि बैठे हैं, तो शुकदेव को अगर वैराग्य हुआ, उनको सदेह मुक्ति हो गई, तो फिर यहाँ पे जो व्यास ऋषि हैं उनको फिर मुक्ति क्यों नहीं मिली? वो अभी भी क्यों हैं बैठे हुए, है ना? तो उस वक्त वशिष्ठ ऋषि के मन में ये प्रश्न, एक ख्याल है, विचार आया। उन्होंने सोचा कि हम समझ रहे थे उतने ज्ञानी अभी भी श्री राम जी नहीं है, ओके, या फिर अज्ञान दिखा रहे हैं। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। एकदम से जाके शुरू नहीं कर सकते, एकदम धीरे 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 जाके शुरू करना पड़ेगा। तो वहां पे वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि देखिए श्री राम जी, आप जो समझ रहे हैं, और ये पहला शौक है योग वशिष्ठ का, आप जो समझ रहे हैं कि एक ही व्यास ऋषि है और एक ही शुक्रदेव है, ये कहानी नहीं है। अभी तक कई सारे 32 व्यास हो चुके हैं, कई सारे शुक्रदेव हो चुके हैं, कई सारे वशिष्ठ हुए हैं, कई सारे श्री राम हुए हैं, कई सारे श्री कृष्ण हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। ठीक है, इट्स नॉट ओनली वन क्रिएशन। अच्छा, ये सारे एक ही साथ हुए ऐसा भी जरूरी नहीं है, एक ही साथ अलग अलग जगह पे भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जो शुक्रदेव के बारे में यहाँ पे कह रहे थे वो इनके पुत्र हैं, ऐसा नहीं है। वो किसी और व्यास के पुत्र थे और उनके साथ वो हुआ था। ठीक है, ये व्यास जो यहाँ पे बैठे हैं ये भी सर्वज्ञानी है, ये आत्मज्ञानी ही है। दूसरी बात, जो मुक्ति की बात कर रहे थे, वो मरने के बाद ही मुक्ति होती है ऐसा आवश्यक नहीं है। लोग जीते जी भी मुक्त रहते हैं। इनफैक्ट अगर मेरे लिमिटेड नॉलेज में कहा जाए यतीन जोशी के, तो मेरा विचार तो ये है कि अगर जीते जी मुक्त नहीं हुआ तो मरने के बाद मुक्ति की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि मृत्यु कब आएगी पता नहीं ना। सारी अटैचमेंट छोड़ना मतलब मुक्ति है। अगर वो अटैचमेंट जीते जी नहीं छोड़े तो शरीर और सांस तो बंद हो जाएगी, और अटैचमेंट तो मन का खेल है, फिर वो कैसे छूटेगी मरने के बाद? वो तो लेके ही जाएंगे हम लोग। तो वो जीते जी छोड़ सकते हैं, इसीलिए मरने के बाद मुक्ति मिलती है, ये जो कंसेप्ट है ये उतनी सच नहीं है। कुछ कुछ केसेस में होता है, मैं नहीं ऐसा नहीं, शास्त्रों में कहा गया है, लेकिन मेरे विचारों में तो वो है कि पहले जीवते जी मुक्त हो जाए, फिर तो एटलीस्ट वो स्टेट ऑफ माइंड रहे तो मरने के बाद फिर मुक्त हो सकते हैं। तो ये बात क्लियर करने के बाद उन्होंने कहा कि देखिए श्री राम जी, आपने जो कुछ कहा, ये चाहिए मुक्ति का नॉलेज चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो इस बात का ध्यान रहे कि किसी को भी, जिसको भी जीवन में ये सब चाहिए, उसको प्रयत्न करना आवश्यक है। बिना प्रयत्न के कुछ नहीं होता। और यहाँ पे उन्होंने एफर्ट्स के बारे में वो सब कुछ कहा जो हमने ऋषि जी के लेक्चर में सुना था। ऋषि जी के हमने जो पहले कुछ वीडियोस देखे थे ना, उसमें ये कहा गया था कि एफर्ट्स कैसे होनी चाहिए, प्रयत्न कैसे होनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। विश्वामित्र ऋषि ये प्रयत्नों का एक खुद अच्छा उदाहरण है। और अगर हमको विश्वामित्र की कहानी पता है तो ठीक है, नहीं तो एक छोटी सी शॉर्ट में बता देता। गाधी नाम के राजा थे और उनके पुत्र थे विश्वामित्र, वो भी राजा, जन्म से क्षत्रिय। और उन्होंने तप करना शुरू किया कि उनको ब्रह्मर्षि बनना है, और तप करते करते उन्होंने कई साल बिता दिए। जब उनके तप को फल आना शुरू हुआ, तब फिर भगवान को डर लगने लगा कि ये तो अगर ब्रह्मर्षि बन गए तो फिर पता नहीं एक राजा है कैसे होगा, क्या होगा। और इसलिए उनके फिर तप में व्यत्यय लाने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए फिर मेनका को भेजा गया, है ना। तो उनको मेनका को भेजा गया, तो फिर ये गुस्सा हो गए, मतलब उनका पहले तो तब वहां पे ढल गया क्योंकि काम के मुंह में फंस गए। फिर उन्होंने वापस अपना प्रयत्न शुरू किया, फिर से प्रयत्न किए तो किसी और को भेजा गया। उस वक्त उनको क्रोध आ गया, क्रोध से उन्होंने जो दूसरी क्या अप्सरा थी, उसको, रंभा थी, उसको शाप दे दिया। फिर उनको पता चला कि अरे मैं अगर तप कर रहा हूँ तो मुझे ना काम में फंसना चाहिए ना क्रोध में फंसना चाहिए, लेकिन दोनों में फंस चुका हूँ। फिर से उन्होंने तप करना शुरू किया। देखिए ये सारी कहानी क्या बता रही है आपको कि एक गोल पकड़ लिया ना, छोड़ा नहीं, बस ब्रह्मर्षि बनना है तो बनना है।
उसके बाद फिर से उन्होंने तपश्चर्या शुरू कर दी और फिर भगवान प्रसन्न हो गए। तो कहते हैं कि आपको अगर ये अप्रूवल चाहिए, ब्रह्मर्षि बनना है, तो किसी इक्विवेलेंट ब्रह्मर्षि से आपको मिलेगा। तो वो वशिष्ठ है, उनके पास चले जाइए। तो वशिष्ठ ने कहा नहीं हो सकते। वशिष्ठ जी ने उनका कारण नहीं दिया, तो उनके 100 पुत्रों को मार दिया वहां पे। फिर से पता चला, रहे मैंने तो गुस्सा कर लिया, मुझे अपने तप का सारा बल मैंने गंवा दिया। फिर से तप किया और फिर तप करते 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 कई साल हो गए। उसके बाद फिर से गए वशिष्ठ ऋषि के पास। वशिष्ठ ने उनको फिर से मना कर दिया। तो मना करने के बाद उनको बहुत गुस्सा आया और फिर गुस्से में उन्होंने सोचा कि चलो अभी मैं वशिष्ठ को ही मार देता हूँ ताकि कोई ब्रह्मर्षि नहीं रहे। तो वो विचार जब किया तो उनके मन में फिर ख्याल आया दूसरी क्षण में कि अगर इनको मार दिया तो फिर मुझे कौन ब्रह्मर्षि कहलवाएगा, क्योंकि कहने वाले तो वही हैं। तो उस वक्त उन्होंने पूरा विचार किया, सब छोड़ दिया, सारी डिमांड ही छोड़ दी और उन्होंने अपना तप जारी रखा। और फिर वशिष्ठ के सामने जब आए, क्या है कि अभी कोई इच्छा नहीं रही, अभी ये डिमांड ही नहीं रही कि मुझे ब्रह्मर्षि बनना है, कुछ बनना है, बस मुझे एक वो आत्मज्ञान की तरफ ही जाना है, मैं वो कर रहा हूँ। तो उस वक्त वशिष्ठ ने कहा उनको कि हाँ, आप तो ऑलरेडी बन चुके हो आत्मज्ञानी, आप ब्रह्मर्षि हो। अगर आपको यह है कि मुझे ब्रह्मर्षि की क्या उपाधि चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, वो एक खाली उपाधि होती है, आप कर सकते हो। तो बोले कैसे कर सकते हैं? तो कहा कि देखिए, बाय लॉ अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपको ब्रह्मर्षि नहीं बन सकते। इस शरीर को आप जला दीजिए, फिर से जन्म लीजिए एक ऋषि करके, तो आप ब्रह्मर्षि हो जाएंगे। आप हो ऑलरेडी। आप मेरे पीछे जो बार बार लग रहे हो कि मुझे ब्रह्मर्षि कहो, मुझे ब्रह्मर्षि कहो, ये आपकी इच्छा है, वो आपको बांध रही है, उस इच्छा को छोड़ दो। तो उसी वक्त उन्होंने फिर अपने शरीर को सूरज की किरणों से जला दिया, नया भी शरीर धारण किया और नया शरीर धारण करके फिर उनको ब्रह्मर्षि कहने लगे। हम कई बार जीवन में अपने प्रयत्न छोड़ देते हैं, है ना? और उसको छोड़ने के लिए कारण ऐसे होते हैं, कहीं तो कुछ कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं तो कोई मूवीज आ गई, आजकल आईपीएल चल रही है, फिर कबड्डी लीग आती है, फिर कुछ ये आता है, वो आता है, कभी गुस्सा होते हैं, कभी घर में अपसेट हो जाते हैं, फिर अपना काम छोड़ देते हैं। ये जो छोड़ने की टेंडेंसी है, भागने की टेंडेंसी है, वो कई बार हमारे मन में बहुत स्ट्रांग होती है। तो ऐसे वक्त हमेशा विश्वामित्रों को सामने रखें कि कैसे उन्होंने, क्योंकि इतना एफर्ट किसी और ने नहीं किया। देखिए, ब्रह्मर्षि बनना कोई आम बात नहीं है। प्रयत्न के हमने कई उदाहरण देखे, प्रयत्न करके लोग ब्रह्मा बन चुके हैं, प्रयत्न करके लोग देव बने हैं, प्रयत्न करके लोगों ने राजा भी बने, क्या क्या नहीं किए। लेकिन ब्रह्मर्षि बनना कोई साधारण बात नहीं, और वो भी एक राजा को, उसको पूरे एफर्ट्स छोड़ के, सारा मोह छोड़ के, इतने इंप्रेशन तोड़ के, सब छोड़ के वहां पे जाना है। और उसमें बीच में जैसे जैसे डिस्टर्बेंस आते गए, उसको वो क्या बोलते हैं, उसमें बलि चढ़ गए, उसके उसमें फंस गए, लेकिन फिर से बाहर निकले, फिर से कोशिश की। तो जब भी कभी ऐसा लगता है कि मैं छोड़ रहा हूँ, तो थोड़ा विश्वामित्र को याद करना कि क्यों छोड़ना है। और विश्वामित्र की दूसरी जो एंड का गोल है, वो भी ध्यान में रखना, है ना, कि बस मैं पकड़ के रखूंगा, लेकिन पकड़ के रखना, अपना गोल अचीव करने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर फेलियर आता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, क्योंकि फेलियर आया था तो फ्रस्ट्रेट हुए थे, गुस्सा हुए थे। तो सब गुस्सा नहीं होना है, हमारा गोल अचीव करने के लिए कोशिश करनी है, लेकिन उसके साथ हमें इस बात का भी ध्यान रहे कि हम उसको, जो रिजल्ट्स हैं, उसको अटैच ना रहे। वशिष्ठ ऋषि ने जो कहा था कि आप जो डिग्री की बात पीछे पड़े कि कोई मुझे कहे, आप ऑलरेडी हो, कहने की जरूरत नहीं है, पर वो कहने की इच्छा आपको बांध के रख रही है। तो जो फल है उसके पीछे ना लगे, अपना गोल के ऊपर काम करते रहें। तो वो सारी बातें फिर हमने ऑलरेडी सुनी थी प्रयत्न के बारे में। तो इसके बाद उत्पत्ति प्रकरण शुरू होता है और वहाँ पे वशिष्ठ ऋषि ये सारे क्रिएशन के बारे में बताना शुरू करते हैं। श्री राम जी पूछते हैं, अगर ये सब कुछ है, ऐसा है, तो ये सारा निर्माण कैसे हुआ, है ना, ये गोल जो देख रहा हूँ दुनिया, ये सब हुआ, तो ये कहाँ से हुआ? तो उसके बाद फिर वो वहाँ पे एक मंटप आख्यान सुनाते हैं। थोड़ा टाइम चेक कर लेता हूँ। अच्छा, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। वो कल सुने फिर कहानी रमेश्वर, मंटप आख्यान क्या है? तो क्रिएशन के बारे में बहुत सुंदर कहानी है। यदि आप अभी भी शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यतीन, कोई बात नहीं। काफी बड़ी है, योग वशिष्ठ का सबसे बड़ा आख्यान है वो। तो अगर कल कर लेते हैं, थोड़ा समय लेके उसको बताऊंगा। हाँ, एक हाफ एन आवर तो वी कैन कवर इन दैट। हाँ, बहुत सुंदर है वो, तो उसको कल थोड़ा शांति से सुनेंगे। एक बात कहना चाहूंगा, आज का जो सेशन हुआ था ना, वो जो व्हाट द ब्लीप वी नो, तो उसमें जो ऑब्जर्वर की बात की थी, थोड़ा उसको आज
हो सके तो विचार करिए ना, कौन है जो देख रहा है। एक उदाहरण होता है कि अगर मैं कहूँ कि इतना डिस्टेंस 1 फुट है, तो जो 1 फुट जो हमारा मेजर करने की स्केल है, वो स्केल ही अगर गलत रही तो फिर कैसे करें? हाँ, कभी ये जाके सोचा है क्या कि ये स्केल 1 फुट कही जाती है तो क्यों इसको 1 फुट कहते हैं? और दुनिया में हर जगह 1 फुट कहते हैं तो 1 फुट का रेफरेंस कहाँ से आए? है ना? जो प्रश्न आता है हमारे मन में इंप्रेशंस के बारे में, जैसे कल कहा था, तो सबसे पहले 1 फुट किसने डिसाइड किया? मुझे अगर नई स्केल बनानी है तो मैं कोई पुरानी स्केल लेके 1 फुट इतना है वो करके उसकी कॉपी बना के करते जाऊँगा, ठीक है? लेकिन पहले 1 फुट किसने डिसाइड किया था कि हाँ, ये इतना 1 फुट होता है, उसकी वजह क्या है? थोड़ा जाके ढूँढिए। तो ये आज भी ऑब्जर्वर की वही बात की थी कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये है, वो है, पर ऑब्जर्व करने वाले में ही अगर दोष है, मतलब जो सबसे पहले 1 फुट की स्केल बनी थी, वो अगर 1 फुट की नहीं, 1.25 फुट की होती, तो बाकी उसके बाद सारी स्केल से 1.25 फुट की बन जाती, है ना? तो और उसको हम मान के चलते कि हाँ, ये 1 फुट ही है करके। तो वैसे ही ऑब्जर्वर के बारे में जो उन्होंने कहा था आज, तो ऑब्जर्वर में ही अगर दोष है, ऑब्जर्वर में ही अगर प्रॉब्लम है, तो फिर तो सारा जो देख रहे हो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अगर मैंने अपने बच्चे को दिखाया कि हाँ, बच्चा ये रेड कलर है, ठीक है? और मेरे ही देखने में अगर मैं कलर ब्लाइंड हूँ और मुझे पता नहीं जो कुछ देख रहा है वो रेड में एक्चुअली ग्रीन है, पर मैं उसको रेड बता रहा हूँ और उस बच्चे की दुनिया में खाली मैं ही मैं हूँ, तो उस कलर को बच्चा हमेशा रेड ही समझेगा, कुछ और समझेगा ही नहीं। करेक्ट? तो वो ऑब्जर्वर जो है वो सही है कि नहीं, इसके बारे में वो बात कर रहे थे। तो देखिए कि हम जो देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, वो उसमें हम जो ऑब्जर्वर हैं, वो एक्चुअल ऑब्जर्वर कौन है, वो कितना सही है? क्या वो पोल्यूटेड है, उसके ऊपर कुछ इंप्रेशन है इसलिए वो कुछ और देख रहा है, या सचमुच ऑब्जर्वर कौन है? क्रिया में हम जब एकदम डीप में जाते, योग निद्रा में जाते हैं, तो शायद वो ऑब्जर्वर जो देखने वाला है उसका थोड़ा ज्ञान होता है कि जो टोटली प्योर है, तो उसको समझ के उसकी नज़र से देखना एक बात होती है। और इसीलिए वो हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारे ऊपर कई सारे गलत इंप्रेशंस हैं। हमने जो अपने आप को ऑब्जर्वर समझा है, वो हमने जो हमारे पुराने इंप्रेशंस हैं, जो लोगों ने बताए, वो सारे करके गए हैं। तो फिर हमारा ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए? तो जो हमको सिखा रहा है, जो हमको दिखा रहा है कि हाँ, ये सही है, वो गलत है, वो प्योर होना चाहिए। और वो प्योर फॉर्म सिर्फ गुरु का होता है या इन शास्त्रों का होता है। तो इसलिए उन्होंने जो कहा उसको मानना चाहिए, ना कि हमारे मन में जो आया वो। ठीक है? इसके बारे में फिर से हम कभी बात करेंगे। यहाँ पे रुकना चाहिए। थैंक यू। जय गुरुदेव। It is such an amazing sharing by Yatin here. So it's a simple सी बात है। कल भी हमने कल या परसों बात की थी आइस एज की, एंड देन जस्ट इमेजिन कि अभी जस्ट कोई बड़ा सा मेटेराइड आके अर्थ के ऊपर बैंग कर देता है, एंड इट्स नॉट पॉसिबल ना, मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, इट हैज हैपेंड, मतलब ऐसा हो चुका है पहले भी कई बार, और किसी भी क्षण में ये फिर से हो सकता है। तो आके बैंक कर देता है, नया फिर से आइसेज शुरू हो जाता है, मतलब युग बदल जाता है, बोलो, या नया एज शुरू हो जाता है, एंड इट्स ऑल रिसेट। ह्यूमन रेस इज नो मोर देयर, कोई ह्यूमन बचता ही नहीं है, इट्स ऑल रिसेट, एंड द जर्नी अगेन स्टार्ट्स विद दैट अमीबा एंड एवरीथिंग, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगेन ह्यूमन बोलता है। और जैसे यतीन ने बोला कि वो 1 फुट की पट्टी को 1 फुट बोलता है, और उस वक्त अगर उन्होंने जाके अगर इसको 1 फुट बोला, तो उस वक्त की दुनिया जो चालू होगी उसके बाद में वो इसको इतने को ही 1 फुट बोलेगी। तो क्या ये 1 फुट रियलिटी, और ये जो पृथ्वी पे जो सिर्फ एक छोटी सी पृथ्वी जिसका अस्तित्व भी नहीं है ब्रह्मांड में या विश्व में, वहां पे किसी ने कुछ आज इतना बोला 1 फुट है तो वो चल रहा है, हम लोग उसी को सच मान रहे हैं। लेकिन जो चेतना जो है, जो जिसके सामने ऐसे कई सारी पृथ्वी है, कई सारी सूर्य है, कई उसके लिए क्या मैटर करता है एक्चुअली? वो तो बस ऐसे देख के मुस्कुरा होगा कि क्या, मतलब कितना कॉन्सेप्ट बना ले कि 1 फुट है, और कितना, मतलब उसके पीछे अगर कोई बोलता है कि 1 फुट है तो तुम्हारा घर 1 BHK खरीद लिया और उसके लिए तुमने पैसा पेश के इतना स्क्वायर फुट, और उतना नहीं मिल जाता है तो कितने कोर्ट केसेस उसके पीछे चल जाएंगे कि मैंने तो इसके लिए इतना पैसा दिया और ये है, और उसके लिए कितना झगड़ा चल जाएगा। आई मीन दैट इज द रीजन सच्चाई में ये माया क्यों बोला ना इसको, कि तुम उसको मेजर कर पा रहे हो ना, तुम तो मेजर कर पा रहे हो, माने वो मेजरमेंट का जो रेफरेंस रखा है वो तुमने ही रखा हुआ है, एंड वो रेफरेंस का कोई मतलब ही नहीं है इस क्रिएशन के लिए। दैट इज द रीजन दिस इज मिथ्या, दैट इज द रीजन दिस इज माया, दैट इज द रीजन ये सब अनरियल है, इसको बोलते हैं। ये एक क्षण में खत्म हो सकता है, जिसको तुम पूरा रियलिटी अपने अंदर इंप्रेशन बना ले कि इतना 1 ही फुट है, अपने अंदर इंप्रेशन बना लिया है कि ये जो टेबल है, मेरा हाथ जाएगा तो यार टेबल के ऊपर हाथ अटक ही जाएगा,
ये जो मन में जो कॉन्सेप्ट बना के रखा है ना, ये यही कॉन्सेप्ट गड़बड़ है एक्चुअली। और योग वशिष्ठा और जो मैट्रिक्स में उसको यही बताता है वो कि इफ यू वांट कि माय हैंड विल गो दिस लाइक दिस, और यहाँ पे देयर इज नथिंग, उस क्षण आपका कन्विक्शन इतना बढ़ जाएगा ना कि यहाँ पे नहीं है टेबल, मुझे रोक नहीं सकता, तो आपकी उंगली आराम से उसके अंदर से घुस जाएगी। ये चीजें बुद्धि को समझ में नहीं आती एक्चुअली, इतने जल्दी आसानी से समझ में नहीं आती कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पे जाऊं, ये दीवार है और मैं दीवार के आराम से घुस जाऊं दीवार के अंदर से, उस दीवार उस साइड चले जाऊं, ऐसे कोई बोलता है? तो ये सब बुद्धि को समझ में नहीं आती। क्वांटम मैकेनिक्स उसके ऊपर बिलीव भी करता है, वैसे डिस्कवरी भी उन्होंने की है, और योग वशिष्ठा ने तो कई हजारों साल पहले ये चीज बोल के रखी, because they knew it, they probably did it, they could permeate through this aram se, and they have written their experiences. With that note, we stop here. We'll just hear out couple of questions here from people. Nikhil, you want to ask something? Please unmute yourself and ask. Bhaiya, how do you know that I wanted to ask something? यहाँ पे लिखा है, विज्ञान करके लिखा है. Really? Okay. Actually, you can switch on your video so that I can add you to the spotlight. Okay, 1 minute. Actually, okay, I just want to ask a question here. Shukdev is the son of Vyas Rishi ji, and I had a perception that he came in Mahabharata or after Mahabharata, and he narrated stories. So how come he was there at the time of Janak? And immediately Bhaiya just replied that there are many Shukdevs and many Vyas Rishis. So this is something quite a revealing thing for me, and I really felt good about it. So that is one thing. Another it's not coming right now. I don't know. One question came. I've somehow not coming up. I'll definitely share that question once it comes up. Thank you. I have one question about विश्वामित्र ऋषि, जो वशिष्ठ ऋषि ने बताया कि आपको शरीर त्यागना पड़ेगा और फिर से करने का, तो उसका लाइक मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या समझा नहीं। यानी ठीक है, क्षत्रिय होके आप ब्रह्मर्षि नहीं हो सकते हैं, वो उस टाइम का जो भी कुछ ये रहेगा, बट और उसके आगे उसके पीछे क्या है वो समझा नहीं। शरीर में काफी, देखिए शरीर और मन ये जुड़े हुए होते हैं। तो एक राजा करके जिस तरह से वो ग्रो हुए थे, उनके जो शरीर पे भी काफी संस्कार हुए थे, तो शायद वो होगा कि उनको संस्कार त्यागने हैं, इसीलिए पूरा अपना राजा करके जो पैदा हुए थे वो छोड़ के आपको ऋषि के भाव से वापस जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अभी जन्म तो मतलब खाली शरीर ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि दूसरा फिर से बचपन से लेके ऐसा नहीं हो सकता। और इतना तप था उनका, तो उनके लिए आसानी से पॉसिबल था कि शरीर छोड़ दे। तो वो कोई शरीर में भी इम्प्योरिटीज ना रह जाए, ऐसा शायद उसका कुछ कारण होगा। मुझे भी उसका इतना पता नहीं कि ये क्यों कहा गया कि क्षत्रिय है इसलिए आप या क्षत्रिय है इसलिए नहीं, आप राजा रहे हैं इसलिए आपको शरीर त्याग से फिर से नया शरीर लेना पड़ेगा। बस वही। भैया मुझे क्वेश्चन है, आपने बोला अगर ऑब्जर्वर पॉल्यूटेड है तो उसका वो सही नहीं देख पाता है, लेकिन ऑब्जर्वर पॉल्यूटेड कैसे हो सकता है? पॉल्यूटेड तो जो बाकी के स्तर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो जो 7वां स्तर है वो तो पॉल्यूटेड नहीं हो सकता ना। पॉल्यूटेड तो वो मन या जो ईगो, हम जिसको मैं हूँ, ये जो मेरी पहचान है, वो जो ईगो है वो पॉल्यूटेड हो सकता है। बुद्धि स्मृति या मन पॉल्यूटेड हो सकता है। हाँ, तो ऑब्जर्वर कैसे पॉल्यूटेड हुआ? ऑब्जर्वर का अगर ज्ञान हो तो ना, हम इतनी दुनिया में देखते हैं सारी लोग, तो सारे के सारे सर्वज्ञानी तो है नहीं, लेकिन सारे के सारे ऑब्जर्वर हैं। आप देखते हैं रास्ते पे लोग झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, घर में विश्वास करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनको सर्वज्ञानी नहीं कहा जा सकता, पर वो ऑब्जर्वर तो है। उनका जो कर रहा है वो तो ऑब्जर्वर ही कर रहा है ना। तो ऑब्जर्वर आपका अगर वी पे जाना चाहिए, तो ऑब्जर्वर कभी पोल्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, ये एकदम सही बात है कि ऑब्जर्वर को जो
आत्मा है उसको तो कोई कभी उसके ऊपर कोई संस्कार नहीं होती कुछ भी, लेकिन जो बिहेव कर रहे हैं वो हम ऑब्जर्वर के लेवल पे जाके बिहेव नहीं करते, हम तो मन और इसके बारे में हाँ बिहेव करते हैं। सही बात। एक्चुअली इसके लिए इसीलिए शायद जो अपने शास्त्र है वहां पे ना दे हैव इस चीज को रियलिटी में समझने के लिए, ये तो है तो चेतना एक ही, देयर आर नो टू, अद्वैता तो बोलता है देयर आर नो टू, लेकिन जो सीमाजी ने जो प्रश्न पूछा है ना, शायद ये इसी तरह के प्रश्न भी डेफिनेटली किसी के मन में आए होंगे, एंड उसी लिए उन्होंने ना एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीव एंड शिव। माने जो जीव की जो बात चल रही है ना, जो जीव वो 6 लेयर पे है, वो 6 लेयर पे भी एक ऑब्जर्वर है, आपका माइंड भी एक्चुअली ऑब्जर्व करता है, राइट? आपकी आंखें नहीं ऑब्जर्व करती है, ये जो अस्तित्व के जो 6 स्तर है ना, उसमें भी एक जीव बैठा हुआ जो ऑब्जर्व कर रहा है एक्चुअली, लेकिन जो रियल में जो 7th लेयर है दैट इज द शिव, दैट इज द परम आत्मा, दैट इज द अल्टीमेट। इसलिए वर्ड भी यूज किया है आपने, अगर ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं ना, तो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड अल्टीमेट ऑब्जर्वर, means it is that human being who is observing, that observer is different than the ultimate observer। माने जो पृथ्वी पर बैठ के जो लोग यहाँ पे है और ये लोगों के बीच में जो जीव है, और वो जीव जो ऑब्जर्व करता है, वो परसीव करता है, उसके परे एक जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, रियल कॉन्शियसनेस, दैट डिवाइन एनर्जी, वो अल्टीमेट ऑब्जर्वर है, और वो चीज उनकी आंखों से जो वो उसको नहीं पोल्यूट कर सकते, लेकिन ये जो जीव जो है ये तो पोल्यूटेड है बिकॉज ऑफ द इम्प्रेशन, बिकॉज वही बोला ना कि एक जीव का जो ऑब्जर्वेशन है या परसेप्शन बोल सकते हैं उसको, वो अलग होता है सेम चीज के बारे में एक दूसरा जीव। फॉर एग्जांपल यतीन जी ने वो एग्जांपल भी दिया, कोई एक जीव है जो जिसको ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है, और उसके पापा ने उसको बताया कि ये ग्रीन है, उसको ग्रीन की तरह दिख रहा है, और उसको पापा ने बताया कि रेड है, तो रेड तो उसने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है। एंड दैट इज व्हाट द डॉक्यूमेंट्री में भी बताया ना, जो शॉन करके एक कैरेक्टर बताया है, वो अमेंडा को बताता है कि यहाँ पे अभी शिप है, एक बार बताता है, बार बार बताता है, तब जाके उसको शिप दिखने लगता है, तब तक वो शिप होराइजन पे होने के बावजूद भी उनको वो शिप दिखाई देता नहीं है, दे कैन नॉट परसीव इट। वो जो जीव जो परसीव कर रहा है ना चीजों को, वो जीव, दैट ऑब्जर्वर इज नॉट द अल्टीमेट ऑब्जर्वर, अल्टीमेट ऑब्जर्वर इज समबडी एल्स। एंड जब अल्टीमेट ऑब्जर्वर देखता है तो इसीलिए वो दिखाते कि एक अमेंडा है, दूसरी अमेंडा उसके हस्बैंड के साथ जा रही है, तीसरी अमेंडा जाके वहां पे मूवी देख रही है, 3 अमेंडा कौन देख सकता है? वो सिर्फ अल्टीमेट ऑब्जर्वर ही देख सकता है एक्चुअली, है ना? जब वो योग वशिष्ठ में बताते हैं कि योग वशिष्ठ की चेतना वहां से निकलती है, एंड देन राम की भी चेतना उनके साथ वो ज्योति के स्वरूप में ऐसे निकलती है, एंड देन वशिष्ठ रूप ऐसे, वो रामायण में बताया था कि वशिष्ठ ऋषि जी यहाँ पे है, उनकी चेतना और राम जी की चेतना है, और वो दोनों मिलके देख रहे कि देयर इज अनदर वशिष्ठ टीचिंग अनदर रामा देयर, दिस व्हाट इज दे शोन, दे वांटेड टू शो दिस। तो वो समझ में नहीं आती थी चीजें, बट अभी वो पूरा आकलन हो रहा है, एटलीस्ट बुद्धि के स्तर पे तो आकलन हो रहा है, व्हाट इज दैट दे आर ट्राइंग टू टेल। सो अल्टीमेट ऑब्जर्वर इज दैट चेतना जो इस क्रिएशन में है, एंड जो इस, जिसको हम लोग शिव बोल सकते हैं, परम आत्मा बोल सकते हैं, एंड जो अपना जीव है, जो यहाँ पे जो ऑब्जर्व कर रहा है चीजें, जो हम लोग परसीव कर रहे हैं, वो बहुत लिमिटेड है, बिकॉज इट इज ऑन द दो 6th लेयर जो गुरुदेव में बताते हैं, वहां का माइंड ऑब्जर्व कर रहा है, वहां का जो इंटेलेक्ट है, वहां के मेमोरी के ऊपर उसके जो इंप्रेशन उसकी तरह ही देखता है वो, इसलिए शायद वो बोला गया होगा कि किसी ने यहाँ पे जन्म लिया, इट इज नॉट रिलेटेड टू जस्ट कहाँ पे जन्म लिया है, इट इज दैट संगोपन जो हुआ है उनका, जो राजा की तरह संगोपन हुआ है। तो फिर आप ये कैसे कर सकते हो, बिकॉज इसका संगोपन बर्थ से लेके किसी के घर में भी जन्म हो उसका, तो क्षत्रिय से जन्म हो या कहीं पे ब्राह्मण के जन्म हो या कुछ जो अपने 4 में जन्म हो, लेकिन जन्म से ही अगर उसको लेके जाके दिया और उसके ऊपर संस्कार ऋषियों वाले अगर हो जाते थे, तो शायद फिर वो जन्म री जन्म वाली बात, ये तो अगेन अनेक जस्ट थियरी बता रहे, कॉन्सेप्ट बता रहे। तो वो संगोपन की बात करी कि वो जो इंप्रेशन उनके जीव के ऊपर बैठ गए, वो इंप्रेशन को ड्रॉप करने के लिए शायद बॉडी को, बट गुरुदेव श्री रविशंकर जी की बात अगर सुने तो बोलते ये सारे इंप्रेशन ध्यान करके मिटाए जा सकते हैं। दैट इज व्हाट गुरुदेव सेज कि इफ यू आर डूइंग दैट मेडिटेशन, ये मुक्ति जो यतीन जी भी बिलीव करते कि ये मुक्ति जो है ये ह्यूमन लाइफ में जीते समय मुक्त होना
पॉसिबल हो सकता है, ऐसा उनका बिलीफ है। इवन आई आल्सो बिलीव द सेम थिंग, एंड गुरुदेव ने भी हमें यही सिखाया है। तो एटलीस्ट लेट अस कंटिन्यू दैट वन पर्टिकुलर बिलीफ। ऐसे बहुत सारे बिलीफ्स होते हैं, बहुत सारे थियरीज होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। यतिन वांट टू से समथिंग। योग वशिष्ठ ने प्रॉमिस किया है, बुक का ही प्रॉमिस है। आवाज दे रही है ना? ओके। हाँ हाँ आ रही। बुक का ही प्रॉमिस है कि जीते जी योग वशिष्ठ आप पढ़ते रहिए, जीते जी यहीं के यहीं पे आपको मुक्ति मिल जाएगी। मेरा नहीं, बुक का प्रॉमिस है, आप पढ़ लीजिए बुक। यतिन जी, मैं यहाँ एक पूछना चाहूंगी। जैसे सोमेश्वर जी ने अभी बताया कि जीव है वो सब इम्प्रेशंस होता है और उससे अलग मतलब कुछ शिव शिव तत्व है। तो जैसे हम बोलते हैं किसी का मृत्यु होता है तो बोलते हैं जीव निकल गया है, और वो निर्जीव पूरा निर्जीव हो जाता है शरीर। तो मतलब जीव निकल जाता है, वही हुआ ना। और वो जो परम तत्व परमात्मा जो बोलते हैं, वो जो ऑल ओमनी प्रेजेंट है, वो अलग है। और ये जीवात्मा के निकल जाने से की वजह से वो बॉडी मूवमेंट नहीं कर सकता है, डेड जैसा हो जाता है। तो वो दोनों अलग है, ये वो क्या एक ही है क्या? अज्ञान में परमात्मा और आत्मा, अज्ञान में दोनों अलग है, ज्ञान में दोनों एक है। हाँ, ये की प्रश्न पूछता हूँ सीमा जी को, शायद आंसर उससे में मिल जाए। सीमा जी, जो सागर में से अगर बूंद को एक अलग निकाले तो सागर में जो पानी है वो और जो बूंद है वो अलग है या एक ही है? पढ़िए से एक ही। ये वाली बात हो सकती है, ऐसे एक इस तरह से देख सकते तो पता लग जाएगा कि क्या है जीव और शिव। मतलब मैंने भैया आपको पहले भी एक प्रश्न पूछा था कि भी ये बोलते हैं कि मतलब आत्मा को कुछ छूता नहीं है, वो उसको कुछ जला नहीं सकता है, तो वो बॉडी में क्यों उसको आना और जाना पड़ता है? तो मतलब वो जीव को आना पड़ता है, ऐसा समझे ना उसको। जो परम तत्व जो शिव तत्व है वो ओमनी प्रेजेंट है, सभी जगह है, उसको आना जाना नहीं पड़ता है। लेकिन जीवात्मा को आना जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो जब तक ये अलग नहीं समझते हैं, मतलब मैं हूँ, ये मैं मन हूँ, मैं शरीर, मतलब आत्मा, इससे अलग हम नहीं मतलब उसका अलग तक नहीं करते, तब तक ये इम्प्रेशन और सब हमको मतलब असर करता है। वही हुआ ना उसका मीनिंग। हाँ, ये जब शरीर छूटता है ना तो 17 चीजें शरीर के साथ शरीर छोड़ के जाती है। हाँ, पंच प्राण प्राण होते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान। पंच ज्ञानेंद्रिय होते हैं, पंच कर्मेंद्रिय होते हैं। ज्ञानेंद्रिय हमको पता है, आंखें, सूंघना वगैरह। कर्मेंद्रिय जिनसे हम काम करते हैं, जीभ है, हाथ है, पैर, ये सब। तो पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, और ये 15 हो गए, और 2 बुद्धि और मन। ये 17 चीजें मिलके हमारा जीव बनता है जो यहाँ से निकलता है। और जब ये जीव इन चीजों को लेकर जाता है तो नेचुरली उसको एक शरीर चाहिए कि वापस फिर से अपनी जो भी इच्छा है, क्योंकि मन तो है उसके साथ ना, तो वो इच्छा लेके फिर से नया कुछ करना है, उनको फुलफिल करना है। इसके लिए वो एक अपने दूसरे शरीर के खोज में रहता है। लेकिन हमने जैसे देखा कि अगर मुक्ति है तो ना ये सारी चीजें जीते जी भी इनका अस्तित्व नहीं रहता। जो हो रहा है वो हो रहा है, उनके साथ कोई अटैचमेंट ही नहीं है। तो जब जीव जाएगा तो उसको ये 17 की 17 चीजों से मुक्त रहेगा, तो अपने आप में तो वो परमात्मा में विलीन हो ही जाएगा। ये कहानी आएगी बाद में, आज ही हम सब कुछ कवर नहीं करेंगे। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, लेकिन तो इसके बारे में कहानियां है, सब डिस्कशन आगे होने वाला है। तो ये सब कुछ सोचते समय ना हमेशा जरूर जरूर अपने मन में ये याद रख लेना, हम लोग जो जीव जीव जी को बात कर रही है ना, ये सिर्फ एक अर्थ से रिलेटेड बात कर रहे हैं, लेकिन अर्थ पे यहाँ पे बस बाकी की ह्यूमन रेस सही या नहीं है हमें पता नहीं है। और ये जो की जो बात चल रही है हमारे ह्यूमन रेस की बात चल रही है, और ये ह्यूमन रेस की जो बात चल रही है वो भी बहुत लिमिटेड है, बिकॉज ऐसे कई सारे आइसेज कई बार हो चुके हैं इससे पहले भी। मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड एंड इट इज हैपनिंग राइट नाउ। जो ब्रह्मांड है उसके लिए बहुत बिल्कुल मैटर ही नहीं करता एक्चुअली, उसके ऊपर ऐसे कई पृथ्वी उत्पन्न होती है, छूट जाती है, विलय हो जाती है। दैट इज लाइक ये बोला ना, शिव का जो स्वरूप बोला है अनंत है, बोलते इनफाइनाइट है, ये उनके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करते। इट जस्ट हैपनिंग, इट जस्ट अनदर इवेंट हैपनिंग, अनदर ह्यूमन रेस क्रिएट हो गई, अनदर पृथ्वी क्रिएट हो गई, अनदर ब्रह्मांड के लिए, शिव के लिए जो डिवाइन एनर्जी है, जो अल्टीमेट ऑब्जर्वर है, जो कुछ भी है उसके लिए बिल्कुल मैटर ही नहीं करता एक्चुअली। इट डजंट मैटर, इट्स ऑल गेम हैपनिंग हियर, इट्स जस्ट अनरियल गेम दैट इज हैपनिंग हियर। ये बात जरूर याद रखना अपने आप। तो सारे प्रश्न अपने आप
शायद डिसॉल्व हो सकता है कि इट्स नथिंग, इट्स बेवकूफी है, इट इज नथिंग एक्चुअली। किसी बात कर रहे हैं ना, एक ह्यूमन रेस की बात करें, वी डोंट इवन नो द टाइम फ्रेम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दिस ह्यूमन रेन। ये 1 बिलियन ईयर में ये जो पृथ्वी का जो उत्पत्ति के बारे में देख लो एक बार, तो और बहुत सारी क्लियरिटी आ जाती है। और हम लोग यार टॉकिंग हम लोग ओनली वन टाइम फ्रेम वेयर ह्यूमन रेस इज एग्जिस्टिंग, उसी के बारे में बात चल रही है, बी इट योर सिस्टर, बी इट ह्यूमन लाइफ में ही किसी बात चल रही है एक्चुअली, ह्यूमन लाइफ की बात चल रही है। तो जिस चीज को जब देख लेना कि कैसे है क्या है, तो और भी थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। बाकी तो फिर हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे। इट्स ऑलरेडी 8:54 एंड प्रोबब्ली वी कैन स्टॉप हियर। बातें तो बहुत सारी, बिकॉज अनएंडिंग चीजें है ये, एंड एक सत्र में इसको कवर करना किसी के लिए भी इट्स नॉट पॉसिबल। सो वी कंटिन्यू दिस श्रृंखला, इसलिए उसको बोल लेना सीरीज है। इस श्रृंखला को हम लोग कल भी जारी रखेंगे। विद दैट नोट, थैंक यू सो मच यतीन, थैंक यू सो मच एवरीबडी हु पार्टिसिपेटेड हियर। और इस जो संघ को क्रिएट किया गया, इस जो टीम को क्रिएट किया गया, इसी को बरकरार रखते हुए विल मीट टुमारो। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच भैया, जय गुरुदेव, थैंक यू।